तुमकुर में एईडीएसओ अध्यक्ष अश्विनी टी ने कहा कि विश्वविद्यालय ने सेमेस्टर के छात्रों के स्नातक डिग्री के लिए भी परीक्षा शुल्क का भुगतान करने का कोई निर्देश जारी नहीं किया है, लेकिन पिछले 1 महीने से परीक्षा की तैयारी और परीक्षा की तैयारी के लिए छुट्टियां दी गई हैं। वहीं सेकेंडरी और टर्शरी डिग्री के छात्रों की परीक्षा इसी महीने की 23 तारीख को खत्म होगी। डेट ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರಲ್ಲ, ಈ ಗೊಂದಲದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ ಗೊಂದಲದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರಲ್ಲ, ಅವರೇನು ಅವ್ರ ಕಡೆ ಏನು ಬಂತು ಸರ್? ಒಂದು ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದು ಕಾಮನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಈ ವಿಷಯ ಇವಾಗ ಕುಲಪತಿಯವ್ರನ್ನ ಕೇಳಂಗೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವರು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಡತನದ ಏನು ಕೊರೋನಾ ಒಂದು ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಹೊರಬರೋದಕ್ಕಾಗದೆ ಜಾಬ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೊತೆಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಮಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಈ ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್. NEP-ಯಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದೈತೆ ಅಂತ? ಖಂಡಿತ ಮುಂದಿದೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಪಟ್ಟಿಡಬೇಕಿತ್ತು? ನೋಡಿ ಸರ್, ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಬಂದಾಗ ಈ ದೇಶದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿ ಜನತೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಇದನ್ನ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವಿರೋಧದ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಕೂಡ ಪಟ್ಟಿಡಿದು ಈ ಒಂದು ನೀತಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ವಾದ? ಹೌದು ಸರ್, ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೌದು ಚರ್ಚೆ ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಅದರ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶ ನೋಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಹೌದು ಸರ್. ಈಗ ಅದು ಆಗಿಲ್ದಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು ಕೊಡುವಂಥ ಸಲಹೆನ ಯಾಕೆ ತಗೋಬಾರ್ದಿತ್ತು ಸರ್ಕಾರ? ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರವಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಸರ್. ಇದೇನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಶಿಕ್ಷಣನ ಕಮರ್ಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯಾಪಾರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಭಾವಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು? ಹೌದು, ಖಾಸಗೀಕರಣದ ಪರವಾಗಿದೆ, ಕೇಂದ್ರೀಕರಣದ ಪರವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮಾಡೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ನಿಯಂತ್ರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ದಾಖಲೆಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ದಾಖಲೆಗಳು ಯಾಕೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಬೇಕು? ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವಂಥ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಬರೀ ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕುರಿತು ಇದೇ ಗೊಂದಲ ಇದೆ ಸರ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ರಾಯಚೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಂತೂ ಪರೀಕ್ಷೆನ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಈ ಒಂದು ಏನು ಮಾಡೆಲ್ ಬಂದಿದೆ UUCMS ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನೇ ಹೇಳಿದೆ, ಆ ಮಾಡೆಲಿಂದ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ. ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆನ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿ। शाहजहांपुर पुलिस का अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर 51 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अपराधियों की अलग अलग मामलों में पुलिस तलाश कर रही थी। फिलहाल सभी को जेल भेज दिया गया है। सर, शाहजहांपुर पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है अपराधी के विरुद्ध, इसमें विगत 24 घंटे में क्या सफलता मिली है? शाहजहांपुर पुलिस ने विगत 24 घंटे में प्रिवेंटिव कार्रवाई के अंतर्गत कुल 51 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है, जिसमें से सट्टे के मामले में 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए और कुल 4,370 रुपये बरामद हुए हैं इनके पास से। अवैध शस्त्र के मामले में 3 अभियुक्त गिरफ्तार हैं, एक बंदूक भी बरामद है इनके पास से और अवैध शस्त्र बरामद है। आबकारी मामले में 28 अभियुक्त गिरफ्तार हैं, 2 भट्टियाँ बरामद हैं इनके पास से, 367 लीटर अवैध देशी शराब बरामद हुई है और NBW मामले में 18 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। इस प्रकार कुल मिला के 51 अभियुक्तों की गिरफ्तारी करके जेल भेजने की कार्रवाई की। संभल के चंदौसी के मोहल्ला राज में एक युवक दूसरे समुदाय के मकान में निवस्त्र घुस गया, जहां आरोप है कि घर में अकेली महिला के साथ छेड़छाड़ करने लगा। जहां महिला युवक के चंगुल से छूटकर बाहर निकल आई, लेकिन युवक ने महिला के कमरे में कुंडी लगाकर कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और निवस्त्र लेट गया। महिला के शोर शराबे करने पर आसपास के पड़ोसी इकट्ठा हो गए। वहीं पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने युवक को भीड़ से बचाते हुए हिरासत में लेकर कोतवाली भेज दिया, जहां युवक के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। शक्तिनगर NTPC सिंगरौली CISF फायर विंग द्वारा अग्निशमन सेवा सप्ताह 2022 का समापन समारोह आयोजित हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि बसुराज गोस्वामी, मुख्य महाप्रबंधक NTPC सिंगरौली बसुराज गोस्वामी ने अपने संबोधन में CISF फायर विंग द्वारा देश के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों के उपक्रमों में प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ अमूल्य सेवाएं प्रदान करने हेतु सराहना की।
उत्तर प्रदेश के हापुड़ ने 10 दिन पूर्व हुई थाना सिंभावली पुलिस व एसओजी टीम ने ब्लाइंड मर्डर की घटना का सफल अनावरण करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद हुई है। थाना सिंभावली क्षेत्र में करीब 10 दिन पूर्व गोली मारकर युवक की हत्या की गई थी, जिसके कारण क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। देखिए, दिनांक 10/4/22 को एक वेट गांव के पास नहर की पटरी थी, उसमें एक व्यक्ति की गोली मार के हत्या कर दी गई थी, जिसकी शिनाख्त हुई थी बाबूराम पुत्र ओम प्रकाश, जो अमरोहा जनपद के रहने वाले थे। इसमें जो ये मर्डर था, उसमें पुलिस के द्वारा और एसओजी टीम, जो सिंभावली पुलिस और एसओजी टीम के द्वारा सीसीटीवी फुटेज और इस पर काम किया गया, जिसमें 2 बाइक पहचान में आई थी, जिसमें एक बुलेट बाइक थी और एक स्प्लेंडर बाइक से 4 लोग जाते हुए दिखे। उसमें फर्दर डेवलपमेंट पे ये निकल के आया कि 4 व्यक्ति थे, वो वहाँ से निकल रहे थे और इनका जो रोड में साइड देने को आपस में झगड़ा हुआ, जिसमें कि जो एक इसमें प्रदीप नाम का था व्यक्ति, जो कि एक आर्मी में ये कश्मीर में पोस्टेड है। इसके पास एक सर्विस रिवॉल्वर, इसकी रिवॉल्वर थी जो कि लाइसेंसी है, वहीं से इसने लाइसेंस बनवाया हुआ है। उसने जब रोड रेस हुई, गुस्से में उसके ऊपर 5 फायर किए, जिससे कि उसकी मौके पे ही डेथ हो गई थी और फिर ये चारों लोग वहाँ से भाग गए थे। इसमें 2 लोगों को हमने गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक व्यक्ति का नाम अनुज कुमार है, जो कि अगोता जनपद बुलंदशहर का रहने वाला है, और दूसरा संदीप कुमार है, जो कि बीबी नगर जनपद बुलंदशहर का रहने वाला है। बाकी 2 अभियुक्त जो हैं वो अभी वांछित हैं इस केस में। एक का नाम विशाल है, दूसरा जो प्रदीप फौजी है। तो इसके लिए भी हम शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। इनके कब्जे से मोटरसाइकिल जो उस टाइम पे घटना में यूज़ हुई थी, वो बरामद हुई है और इसमें आगे की हम कार्रवाई कर रहे हैं। संस्कार धानी की आन बान और शान इशिता विश्वकर्मा ने एक बार फिर से संस्कार धानी जबलपुर का नाम रोशन करते हुए इंडियाज गॉट टैलेंट में फर्स्ट रनर अप की ट्रॉफी अपने नाम करके यह साबित कर दिया है कि इशिता लगातार मेहनत कर रही हैं और वह उस मुकाम पर पहुंचना चाहती हैं जहां हर एक सिंगर का सपना होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडियाज गॉट टैलेंट में उनको छोटी लता का नाम दिया गया। वह कहीं ना कहीं जबलपुर ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश को गौरवान्वित की हैं। और लगातार हारी हूँ, ऐसा भी नहीं कि एक के बाद एक कुछ जीता हुआ, ऐसा नहीं, लगातार हारी हूँ और कहीं ना कहीं हमारा भी मॉरल डाउन होता है। तो मैं बस एक ही चीज़ आज के जो यूथ है, यंगस्टर्स हैं, उनको यही मैं कहना चाहूँगी कि नेवर लूज़ होप। आपके अंदर सिर्फ ना पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो, आपको नहीं पता होता है कि कौन सी बड़ी चीज़ आपके लिए लिखी गई है या आपके लिए बनाई गई है या ऊपर वाले ने सोच रखी है। तो आपको बस, आपका काम इतना है कि आपको प्रयास करते रहना है। बाकी कौन सी चाबी से कौन सा ताला कब खुल जाए आपको भी नहीं पता, और जब खुल जाता है तब तो फिर बाहर ही बाहर है। इशिता जी से बात करके हमें ये पता चला कि हार नहीं मानना है। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, इसलिए बने रहिए मेरे साथ। मैं विकास पार्टनर और आप देख रहे हैं टाइम टीवी न्यूज़ 24 से। आज हमारे साथ है देश की लगातार छोटी लता मंगेशकर और संस्कार धानी का नाम रोशन करने वाली विश्व में इशिता विश्वकर्मा जी। पहले आप तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा एक क्वेश्चन है कि जब आप इतने बड़े स्टेज में जाते हो, एक डर रहता है, हेजिटेशन रहता है, इस चीज़ को आप कैसे मेंटेन करते हो, कैसे इस चीज़ को नोटिस करते हो? मेरे को ये लगता है कि किसी भी सफ़र में, किसी भी नई चीज़ को जब आप कोशिश करने जा रहे होते हो तो डर तो लगता है, और वो डर कहीं ना कहीं ज़रूरी भी है ताकि आप ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाओ। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि जब आपके पास एक बैक सपोर्ट होता है ना, जब आपके पास एक साथ होता है, एक जिसे कह सकते हैं कि आपका हाथ थामे हुए जब आपके पास एक शक्ति होती है, तो आपको किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता। और मैं इस मामले में बहुत ज़्यादा टचवुड ब्लेस्ड रही हूँ कि ईश्वर का साथ रहा है, मेरे शहरवासियों का साथ रहा है, लोगों का साथ रहा है। और कहीं ना कहीं जिस एक साथ को मैं बहुत मिस करती थी, मेरे पापा, उनका जैकेट पहन के गाती थी, तो वो भी मेरा एक सबसे बड़ा मेरा ड्राइविंग फोर्स था थ्रू आउट द जर्नी। आपका अब तक का पूरा जो सफ़र है, उसमें सबसे यादगार परफॉर्मेंस कौन सी रही, सबसे यादगार चीज़ क्या रही आपके लिए? सबसे यादगार मेरे लिए जो था परफॉर्मेंस, वो था जब मैंने एक रिश्ते स्पेशल करके एपिसोड बना था, तो मैंने अपने पापा को ट्रिब्यूट करके 2 गाने गाए थे। और उन गानों की प्रस्तुति के बाद मुझे मनोज मुंतशिर सर ने मेरे जीवन का सबसे पहला ब्रेक ऑफ़र किया था। द इनकार्नेशन सीता करके एक फिल्म आ रही है कंगना रनौत जी की, उसमें सीता माँ की आवाज़ बनने का मौका मिला। मेरे लिए सबसे बड़ा मौका। तो जल्द ही इशिता जी हमारे साथ फिल्मों में दिखाई देंगी। उससे पहले कोई एल्बम आपने सोचा, कुछ
सोच के रखा, उसके लिए कुछ बताएं। बिल्कुल, अभी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लाइंड अप है, मतलब बहुत सारी ऐसी है जो हम डिस्क्लोज ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन अभी हमारी प्रायोरिटी यही है कि हमको मुंबई शिफ्ट होना है और आते जाते रहना है, ताकि ये जो अब उपलब्धि है इसको मैं थोड़ा और बड़े स्तर पर ले जा सकूं और जबलपुर को और भी ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करा सकूं। बहुत से ऐसे एक्टर्स और बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हैं जो लोगों के अंदर हेजिटेशन होता है, वो कुछ कर नहीं पाते, उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि हेजिटेशन और ये सारी चीज़ें ना आपको बार बार प्रयास करने से, जैसे अगर मैं सिंगर्स के लिए बात करूँ तो जब तक आप अपना स्टेज फियर नहीं निकालोगे ना तब तक कहानी नहीं जम पाएगी। और मैं अगर अपनी बात कहूँ तो आज सबको लगता है कि मैंने सारेगामापा भी विन किया, फिर अभी मैं इंडियाज़ गॉट टैलेंट भी सेकंड पोजीशन तक आई, तो ये 2 अवार्ड जीतने के लिए उसके पहले कम से कम 8-9 रियलिटी शोज़ में हारी भी हूँ। और प्रदेश के अन्य जिलों के साथ सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में भी पंचायत चुनाव नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई। मुखिया के नामांकन करने के लिए काफी भीड़ थी। वहीं चिलगू पंचायत के मुखिया प्रत्याशी कौशला सिंह, आस नवनी पंचायत से गुरुचरण सिंह, तमोलिया पंचायत से मुखिया प्रत्याशी रत्नी बाला सिंह और अंचल कार्यालय के बाहर पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं रहने के कारण पर्चा दाखिल करने चांडिल प्रखंड कार्यालय में नामांकन करने पहुंचे प्रत्याशियों में नाराजगी थी। शिक्षा आते हैं सिंह सरदार आसपास से नामांकन किए। हाँ बिल्कुल, एकदम जो नहीं हुआ है पिछले वाला ये में वो भी करेंगे कार्य, और मेरा प्राथमिकता रहेगा सड़क, रोजगार और जितने भी सारे समस्या होगा, जैसे वृद्धा पेंशन हुआ और भी है ये सब। बिल्कुल हाँ, इसके लिए आवाज़ उठाएंगे और प्राथमिकता भी रहेगा, बन के है, चालू नहीं हुआ है। मुखिया प्रत्याशी के लिए हमारे ही पत्नी कौशल्या देवी ने आज नामांकन किया। जो आज हम बीते 6 साल जो हम गांव का सेवा किए, जो अधूरा है वो मेरे पत्नी का द्वारा हम गांव के लिए, सर्व विकास के लिए हम उसको पूरा करेंगे। और अभी हम साथ में हैं, मेरा प्रत्याशी मेरा वाइफ जो है वही मुखिया प्रत्याशी इस साल के लिए बनेगा। जितने पंचायत से मुखिया पद के लिए रत्नी वाला सिंह ने मुखिया पद के लिए नामांकन किया, जो उनके समर्थक तमले पंचायत के साथ में जाते हैं। तो चुनाव जीतने के बाद जो भी काम इसका पहले 5 साल में जो बाकी अधूरा है वो सब काम मेरा धर्मपत्नी है वो करेगी चुनाव जीतने के बाद। जबलपुर में बीते दिन गोरखपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ब्रजमोहन नगर में किराना के दुकान के संचालक एवं कांग्रेस नेता की निर्मम हत्या को लेकर पूर्व वित्त मंत्री विधायक तरुण भनोट एवं कांग्रेस नगर अध्यक्ष जगत बहादुर सिंह अन्नू और मांडवा बस्ती रहवासियों के साथ पहुंचकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया। साथ ही मांडवा बस्ती में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगवाने एवं पुलिस प्रोटेक्शन को लेकर सुझाव दिया। इसमें पूर्व मंत्री एवं विधायक श्री तरुण भनोट जी और नगर शहर कांग्रेस अध्यक्ष जगत बहादुर अन्नू जी और पूर्व पार्षद मुकेश राठौर, इनके आप सभी के नेतृत्व में आज यहाँ पे मांडवा क्षेत्र से करीबन 50-60 जो रहवासी आए थे, उनके द्वारा जो अभी रिसेंटली जो मर्डर हुआ है, हालांकि उसमें सभी आरोपी अरेस्ट हो गए हैं, लेकिन फिर भी एक रोष था कि उसमें जैसे कहीं कहीं लाइट नहीं है, कहीं अंधेरा है और पुलिस की गश्त बढ़ाई जाए, पुलिस की कार्रवाई बढ़ाई जाए, तो उसके संबंध में प्रतिवेदित किया गया है। हम इसका संज्ञान लेते हुए इसमें आज से आवश्यक कार्रवाई करेंगे। सभा क्षेत्र के अंतर्गत एक ऐसा स्थान रामपुर के अंदर था जहाँ पर ये कल्पना की गई थी कि जो हमारे गरीब मजदूर वर्ग के लोग हैं, जिनके मकान तोड़े गए, जिनको विस्थापित किया जाएगा, एक शांतिपूर्वक जीवन अपना वहाँ पे व्यतीत कर सकें। पर लगातार सरकार बड़ी बड़ी बातें तो कर रही है, पर जो वहाँ बेसिक सुविधा है वो उपलब्ध नहीं हो पा रही। आप उठा के वहाँ का रिकॉर्ड देख लीजिए, कितने मर्डर वहाँ हुए, महिलाओं के साथ गलत हरकतें हुई, लूटपाट, चोरी आम बात हो गई, गुंडागर्दी और नशे का प्रचलन और धंधा जोरदार तरीके से वहाँ हो रहा है। पुलिस ने बीच में कार्रवाई की, पर
अपराधियों में जिस प्रकार की दहशत होना चाहिए थी वो नहीं हो पाई। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हमारे कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता भी था, वहाँ का एक अच्छा रहवासी भी था बसंत पटेल, उसकी हत्या कर दी गई। हत्या क्यों की गई? उसकी बच्ची के साथ कुछ असामाजिक तत्व गलत बात करते थे, गलत बर्ताव करते थे। उसने जब बुला के रोका कि ये नहीं करना चाहिए तो उसको मार दिया। अब उसके परिवार तो पीछे है, क्या उस बच्ची के ऊपर, उस परिवार के ऊपर, बस्ती के लोगों के ऊपर बीत रही है? सामाजिक रूप से उसकी जो मदद कर सकते हैं हम करेंगे, पर ये मुद्दा सामाजिक नहीं है, ये मुद्दा कानून व्यवस्था का है। एसपी महोदय से कल चर्चा हुई थी, आज लोगों के साथ हम वहाँ पे मिले, जो कुछ मुख्य बातें थी वो उनसे की हैं, जिससे कि वह पुलिस की गश्त लगातार हो। नगर निगम के आयुक्त महोदय से हमने निवेदन किया है कि जितनी स्ट्रीट लाइट्स हैं उनको चालू किया जाए, लाइट्स बंद है। और मैंने ये कहा कि विधायक निधि से जहाँ जहाँ पुलिस बोलेगी इम्पॉर्टेंट है, हम वहाँ पूरी राशि देने को तैयार है कि आप CCTV कैमरे लगाएं, जिससे अपराधियों पे अंकुश लग सके। 48 घंटे का समय पुलिस प्रशासन के पास है। हमें उन्होंने आश्वस्त किया है कि कार्रवाई तगड़ी होगी, अब वो कार्रवाई हो जाए, लोगों में शांति हो जाए, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो हम गांधीवादी तरीके से आगे भी आंदोलन करेंगे और अपनी बात को रखेंगे। जनपद कुशीनगर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज थाना नेबुआ नौरंगिया पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान पिपरा बुजुर्ग थाना गेट के सामने पिपरा नेबुआ रोड पर स्कॉर्पियो में कुल 51 किलोग्राम अवैध गांजा के साथ 2 अभियुक्तों को, जो स्टेपनी के टायर फाड़कर व गाड़ी के सभी दरवाजों में छिपाकर रखा गया था, प्रभारी निरीक्षक नेबुआ नौरंगिया द्वारा गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। जनपद कुशीनगर क्षेत्र के अंतर्गत थाना नेबुआ नौरंगिया ने एक सराहनीय कार्य करते हुए अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर के एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इसके 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम प्रेम यादव और अशोक चौधरी हैं। इनके पास से 51 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमत 9 लाख रुपए है। इसके अलावा एक स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद की गई है, जिस स्कॉर्पियो गाड़ी में ये इस गांजे को रखे हुए थे और इसको ले जा रहे थे बेचने के लिए। ये गांजा बिहार के क्षेत्र से ला रहे थे और इनकी योजना थी कि इसको उत्तर प्रदेश के जो सीमावर्ती जिले हैं वहां पर इसकी खपत करनी थी। इनके जो लिंकेज हैं बैकवर्ड और जहां से ये सप्लाई ले रहे थे उसकी भी तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही है और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई हो रही है। सर, एक नया तरीका ले जा रहे थे, क्या नया तरीका था इनका ले जाने का स्कॉर्पियो से? देखिए, इस प्रकरण में जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने स्कॉर्पियो गाड़ी में जो दरवाजे थे, तो दरवाजों के अंदर का जो भाग था जहां पे मटेरियल होता है, सॉफ्ट मटेरियल होता है, उसके अंदर इन्होंने इस गांजे को छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में छुपा के रखा था। तो प्रथम दृष्टया अगर आप गाड़ी की चेकिंग करेंगे तो वो नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप उस पूरे स्क्रीन को और उस पूरे मटेरियल को उतारेंगे तो वो अंदर दिखाई दिया। तो इन्होंने बताया कि इनको ये जो आइडिया है वो बॉलीवुड की मूवीज से मिला है, जिसमें इन्होंने इस तरह की हरकतें करके इसको छुपाया था और ये ले जा रहे हैं। शाहजहांपुर पुलिस ने बजरंग दल के जिला मंत्री को गोली से उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने सोशल मीडिया पर अपना वीडियो जारी करके गोली से उड़ाने की धमकी दी थी। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आरोपी को जेल भेज दिया है। दरअसल शाहजहांपुर में बजरंग दल के जिला मंत्री राजेश अवस्थी को गोली से उड़ाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो वायरल करने वाले का नाम अकरम बताया गया था। होती है क्योंकि शाहजहांपुर शहर जो है वो हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है, क्योंकि शहीद अशफाकुल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल जैसे ऐतिहासिक शहीद लोग शाहजहांपुर से ही हैं। कुछ लोग आरएसएस के बजरंग दल के माहौल खराब करना चाहते हैं। और रही भाई टाउन हॉल मस्जिद की, अगर किसी बहन के लौड़े ने कांदू ने, जो झाटू कांदू है बहन के लौड़े फर्जी वाले भक्त, उनकी माँ की चूत में हाथ डाल दूंगा अगर जो मस्जिद के आसपास भी भटक गए या टच भी कर दिए, चाहे बहन के रण के भेजे लग करना पड़े, ठीक है। और शाहजहांपुर पुलिस एसपी साहब से मैं विनती करता हूँ, जिला अधिकारी महोदय से करता हूँ, जो लोग शाहजहांपुर का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं प्लीज आप उन पर सख्त सर कार्रवाई करें। क्योंकि मस्जिद तोड़ने की बात करी थी, अगर यही मैं कह देता कि भाई मैं किसी मंदिर में तोड़फोड़ करने जाता तो भाई मुझे जेल हो जाती, मुझे फांसी हो जाती और मेरा घर परिवार सब बर्बाद हो जाता। हम मुस्लिम लोग हैं, हम लोग प्यार मोहब्बत इखलाक चाहते हैं इस देश में, और जो भी हमारे शहर में या हमारे देश में नफरत फैलाना चाहता है ना, तो वो हमारी लाशों से गुजरेगा भाई। या तो मैं 2-4 को लपेट जाऊंगा, ठीक है। प्रशासन अगर कार्रवाई नहीं करता है, मैं प्रशासन का अल्टीमेटर करता हूं। जो लोग प्रोसेस करने गए थे सदर थाने में, ठीक है, बहुत जल्दी वो सलाखों के पीछे होंगे। चाहे ये बात मुझे दिल्ली से करना पड़े, चाहे लखनऊ से करना पड़े,
और चाहे हमारे वहाँ के जो बहुत ही अच्छी मिजाज के कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जी हैं, बहुत अच्छी छवि के हैं, 10वीं बार 9वीं बार विधायक बन के आए हैं, 2 बार के मंत्री रह चुके हैं। प्लीज अगर ये जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो वो टोपी लगा के गंजा नहीं कह रहा था, बजरंग दल का, आरएसएस का, ठीक है, टाइम आने पे उसे बता देंगे। जो हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाना चाहता है ना, जब हमने कमलेश तिवारी जैसे को नहीं छोड़ा तो इसकी क्या औकात है। चिन्मयानंद तो छोड़ दो, ये बहन का लड़ो नरसिम्हा नाव है ना, छुटते ही गोली मार दूंगा मैं, ठीक है, छुटते ही गोली मार दूंगा। और सुनो, मैं मर गया, मुझे जेल हो गई, फांसी हो गई, घर में 5 भाई हैं, एक ही काफी है। ये जो माहौल खराब करना चाहते हैं, शाहजहांपुर के लोगों से अपील है, ये जितने भी लोग हैं इनसे दूरी बनाए। ये देश का और प्रदेश का माहौल खराब करना चाहते हैं। एक तरफ भारत सरकार मुसलमानों की हित की बात करती है, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो शाहजहांपुर के एक जो धक्के वाला वीडियो आया था, आरएसएस के लोगों धक्की दी, उसमें किस तरह कार्रवाई की गई है? इसमें एक अकरम नाम का व्यक्ति था जिसको चिन्हित कर लिया गया और अभी उसको गिरफ्तारी उसकी कर ली गई, हिरासत में है, उससे गहनता से पूछताछ की जा रही है। इसके द्वारा बहुत आपत्तिजनक टिप्पणियाँ की गई थी, जिसके कारण एक समुदाय विशेष को टारगेट करते हुए, तो इसके गिरफ्तारी के बाद इससे गहन पूछताछ की जा रही है ताकि ये इस्टेब्लिश किया जा सके कि और कोई इसके पीछे तो शरारती तत्व तो नहीं है या इसके अकेले दिमाग की उपज है। तो इसको तय करने के बाद उसके विरुद्ध सक्षम धाराओं के अंतर्गत अभियोग ऑलरेडी पंजीकृत कर लिया गया है, लेकिन यदि ऐसा पाया जाता है तो अन्य जो धाराएँ इससे आकृष्ट होंगी उनके अंतर्गत भी इसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।